Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 21 of the course of EDC. In today's lecture, we are going to continue with the differential amplifiers having active loads. Let's begin. So we can see in the last slide, if you can recall, we saw that we are actually using active loaded differential amplifiers because of the fact that it is not only giving us differential to single-ended conversion, but at the same time the current at the output terminal has increased by a factor of 2, यानी कि करंट जो है वो ट्वाइस आउटपुट पर मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली गिविंग अस डबल द गेन एज कंपेयर टू अ सिंगल एंडेड टर्मिनल. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ मिरर्स को यूज़ करने का एडवांटेज अब हमें पता चल गया कि मिरर को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, कि सिंगल एंडेड कन्वर्जन भी कर रहा है और गेन में रिडक्शन भी नहीं हो रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम वन टर्मिनल ओनली. In the next step, now we are trying to find the differential gain of the active loaded atmosphere. इसका अब हम गेन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हमें गेन दे क्या रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दैट दिस गेन विल बी कॉल्ड एज AD बिकॉज डिफरेंशियल इनपुट्स हैव बीन अप्लाइड. चूँकि डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई किया है तो गेन को आप AD का नाम देंगे. वी विल बी यूजिंग द लॉजिक ऑफ GM&R out. This is the same logic that we used while calculating the gain of cascode amplifiers, if you can recall. For cascode amplifier, we use the logic that we calculated the total GM of the circuit and we calculated the total output resistance of the circuit. We multiplied them together and we called it gain. In the same we will be using the same scenario over here. We will be calculating the total GM of this circuit, total R out of this circuit, under the condition that differential inputs are given, and thus it will give us the gain AD, the differential gain. So let us begin with this. We will be first calculating the complete GM of the circuit. We will be making partitions of this circuit for the calculation of GM. Let us see how we will do it. First of all, what I have done, I have represented the resistances are not of all of the ट्रांजिस्टर्स विच आर प्रेजेंट हेयर. Q1 के लिए R0 को मैंने यहाँ लिख दिया है. Q1 की रेजिस्टेंस R0 अगर होती तो वो बेसिकली यहाँ होती. प्लीज़ रिमेंबर दैट द रेजिस्टेंस R0 इज़ ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स टर्मिनल. Q1 के ड्रेन और सोर्स के दरमियान है, Q2 के ड्रेन और सोर्स के दरमियान उसकी रेजिस्टेंस है. Q3 के साथ R03 आ गई और Q4 के ड्रेन और सोर्स के दरमियान में उसकी R0 रेजिस्टेंस आ गई R04. At the same time, please remember and recall that whenever we calculate complete transconductance of the circuit, we ग्राउंड द आउटपुट टर्मिनल. ये बात याद रखिएगा, कैस्कोड में भी चेक कर लीजिएगा कि जब हम किसी ट्रांजिस्टर का कंप्लीट सर्किट का complete transconductance calculate करते हैं, we always ground the output terminal. That is what I have done over here. मैंने output terminal को ground कर दिया है. और ये भी याद रखिएगा कि GM किसके बराबर होता है. GM बराबर होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. Total transconductance is the ratio of output voltage I0 divided by the input voltage. Input voltage यहाँ पे VID/2 प्लस में है माइनस VID/2, तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगी VID/2 माइनस VID/2, ये VID बन गया. तो GM जो है वो बराबर है बेसिकली I0 ओवर VID के. दिस रेशियो वी वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस सर्किट. Okay, please try to observe that in this slide we are going to break this circuit into two parts. ठीक है, इस वाले पार्ट का स्मॉल सिग्नल मॉडल हम लोग अलग बनाएंगे, राइट साइड का स्मॉल सिग्नल मॉडल जो हम लोग अलग बनाएंगे. सबसे पहली बात ये कि देखें, ट्रांजिस्टर Q1 और R01 तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बेसिकली इनपुट सिग्नल अप्लाइड है. तो ये VID/2 Q1 और R01 एज इट इज़ आ गए. VID/2 Q1 R01 ये पोर्शन आपको एज इट इज़ बना हुआ नज़र आ रहा है.
अब आते हैं Q3 के ऊपर और R03 के ऊपर and over let us also see this fact that the gate and drain of Q3 are shorted. इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके का गेट और ड्रेन शॉर्टेड है, मॉसफेट की एनालिसिस, करंट मिरर्स की एनालिसिस करते वक्त मैंने ऐसे एक ट्रांजिस्टर की एनालिसिस आपको कराई थी जो कि एनमॉस ट्रांजिस्टर था और उसका गेट उसके ड्रेन से शॉर्टेड था, और हमने उसके ड्रेन के ऊपर एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके ये देखने की कोशिश की थी कि यहाँ से इसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये भी एक पीमोस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका गेट ड्रेन शॉर्टेड है और उसकी आर नॉट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उस एनालिसिस से, प्रीवियस एनालिसिस से आपको ये पता चला कि ये एनालिसिस आपके लेक्चर्स के अंदर मौजूद होगी, जहाँ पे मैंने मॉसफेट के जो विल्सन वगैरह की जो रेजिस्टेंसेस निकाली थी उससे पहले ही मौजूद होगी, जिसमें हमने एक गेट और ड्रेन शॉर्टेड ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाली है और ये देखा है कि उसके ड्रेन से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नज़र आती है। तो जब उस एनालिसिस को मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चला कि वो ट्रांजिस्टर जिसका गेट ड्रेन शॉर्ट कर दिया जाए, उसकी ड्रेन से दिखने पर जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो ये आती है। For the sake of simplicity, what I did, I replaced this complete transistor. मैंने इस पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस कर दिया? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है इससे कर दिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि Q1 ट्रांजिस्टर के लिए ये जो पूरा वाला ऊपर का नेटवर्क है ये एक तरह से एक रेजिस्टर का काम भी तो सर अंजाम दे रहा है ना, एज अ लोड एक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस टर्मिनल से जो कि बेसिकली Q3 का ड्रेन टर्मिनल बनता है, यहाँ से देखने पर क्या रेजिस्टेंस की नज़र आएगी, इसकी R0 और इसकी 1/GM दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। यहाँ मैंने Q3 की वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी और एज इट इज़ ये वाला ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। प्लीज़ नोट के आई एम राइट नाउ ड्राइंग द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट फॉर द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट ओनली। अब ये मेरे पास आ गया। इस टर्मिनल को अगर मैं देखूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये टर्मिनल जो है वो, या तो मैं कह लूँ इट इज़ आइदर द ड्रेन ऑफ ट्रांजिस्टर Q3 और द गेट ऑफ Q3, इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि मुझे ड्रेन और गेट आपस में शॉर्टेड नज़र आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग VD3 मैंने इस पॉइंट को कह दिया VG3 और इस पॉइंट को मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है VG3। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आगे चलते हैं। लेट अस सी द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस पार्ट। Okay, now we can see that this is the small signal model for the right part of the circuit where you can see the transistor Q2 and its resistor R02, ये दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। Along with this you can see the input signal -VID/2 भी नज़र आ रहा है। अच्छा, प्लीज़ नोट के since we are trying to find the capital GM total conductance of the circuit, we have grounded the output terminal, वो output terminal grounded यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, also we have transistor Q4 and R04 where R04 is seen to be drawn, R04 तो नज़र आ रही है कि वो ड्रॉ हुई भी है। Q4 ट्रांजिस्टर का बेसिकली इंटरनल करंट सोर्स बनाया है। अच्छा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि भाई ये इतना टूटा फूटा टाइप स्मॉल सिग्नल मॉडल है। अगर आप बेसिकली इस Q4 ट्रांजिस्टर का पूरा टोटल मॉडल बनाएंगे ना, इस पॉइंट के ऊपर Q4 का पूरा टोटल मॉडल बनाएंगे, ये ड्रेन टर्मिनल, तो ड्रेन टर्मिनल के ऊपर बेसिकली जब बनाएंगे तो यही दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली शॉर्ट करके VGS वाला पार्ट नहीं दिखाया गया इसके अंदर, या इस ट्रांजिस्टर को Q2 का पूरा मॉडल इसलिए नहीं दिखाया गया कि इस वक्त इन सब की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के तरीके से या मोस्ट ईजिएस्ट वे को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये सारा मॉडल दिखाया गया है। इन रियलिटी अगर आप पूरा वो भी बना देंगे तो भी जो है वो तकरीबन इसी तरह की एनालिसिस एंड में रिजल्ट हो रही होगी, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ शो नहीं किया गया है वो बेसिकली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एनालिसिस में। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि देखिए, ट्राई टू ऑब्जर्व R04 एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जब ग्राउंड आ जाता है तो वो रजिस्टर बेसिकली इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, लेकिन क्या इस ग्राउंड के कनेक्ट होने से इस ट्रांजिस्टर Q2 से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा? देखिए, ट्रांजिस्टर Q2 के अंदर जो करंट इस्टेब्लिश हो रहा है वो बेसिकली गेट वोल्टेज ऑफ 3 की वजह से इस्टेब्लिश हो रहा है।
इसलिए कि ट्रांजिस्टर जो आपका Q4 है उसके अंदर जो करंट सोर्स लगी हुई है, अभी हम पीछे डिस्कस करते हैं, अभी देख लेंगे इसको आगे जाके, कि यहाँ पे मैंने Q4 के करंट सोर्स के साथ GM4 VGS4 नहीं लिखा, बल्कि मैंने GM4 VG3 लिखा। ये मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आगे जाके इसको डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो Q4 के अंदर बेसिकली जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इस वजह से जनरेट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q3। वैसे यहाँ पे ये बहुत एविडेंट है कि VGS3 और VGS4 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के गेट्स शॉर्टेड हैं और दोनों का सोर्स भी आपस में कनेक्टेड है और वो ग्राउंड है, ठीक है। तो चाहे मैं VG4 की बात करूँ या VG3 की बात करूँ, दे बोथ विल बी सेम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग VG4 मैंने यहाँ VG3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इफ आई लुक इनटू दिस रजिस्टर R02, आई कैन अगेन सी कि रजिस्टर के भी दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो ग्राउंड आ गया है। जब दोनों टर्मिनल पे ग्राउंड है इसका मतलब है दिस रजिस्टर इज ऑल्सो इनएक्टिव कैरिंग नो करंट। सो दिस सिंपली मीन्स दैट द ओनली करंट विच इज प्रेजेंट इज डायरेक्टली in the transistor Q4 and directly in the transistor Q2। करंट जो है वो इन दोनों के रेजिस्टर्स के अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद है। लेट अस सी हाउ द सर्किट विल वर्क। ओके, अब हमारे पास ऑब्जर्व करने की बात यह है कि ये लेफ्ट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट है जो मैंने पहले बनाया था। आई कैन क्लियरली नोट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ Q1 विच इज R01 is actually in parallel with this R03 and 1 over GM3। इसलिए कि देखें इन दोनों रेजिस्टेंसेस का ये एंड भी कॉमन है और दोनों का दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड है। जब दोनों एंड्स किसी भी रेजिस्टर्स के सेम टर्मिनल पे हों तो वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल होती हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया कि ये R01 यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में प्लेस कर दिए और यहाँ से हटा दिए। अच्छा, एट द सेम टाइम लेट अस ऑल्सो रिकॉल कि Q1 जो ट्रांजिस्टर था उसका करंट क्या था। अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जब हमने डिफरेंशियल एक्टिव लोडेड मॉसफेयर स्टडी किया है, हम लोगों ने कहा था कि Q1 का ट्रांजिस्टर जो था वो स्मॉल i से मैंने रिप्रेजेंट किया था एंड वी फाउंड इट टू बी GM_VID/2, ठीक है। तो वो करंट जो स्मॉल आई करंट यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो होते हुए नज़र आ रहा था वो था GM_VID/2। वही करंट बेसिकली यहाँ से पूरा फ्लो होते हुए नज़र आ रहा होगा, क्योंकि Q3 थे और Q1 जो थे दे बोथ आर इन एक्चुअली सीरीज। अब अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 0 माइनस VG3 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस बराबर होगा इसी करंट I के जो कि GM_VID/2 है। तो जो मैंने ओम्स लॉ बताया है मैंने इसको रीअरेंज किया है, तो VG3 की इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है। इसमें से ये क्या है, VG3 बराबर है करंट के, वो करंट क्या था GM_VID/2, और रेजिस्टर के, वो रेजिस्टर कौन सी रेजिस्टेंसेज हैं, वो ये सारी रेजिस्टेंसेज है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। मैंने जो ओम्स लॉ बताया है सिंपली मैंने उसको रीअरेंज करके यहाँ लिखा है। अच्छा, यूजुअली R03 and R01 are larger in value as compared to 1 over GM3, therefore आपको पता है कि smaller resistance will be the resultant। For this purpose मैंने R03 और R01 को इग्नोर करके ये VG3 की एक्सप्रेशन बनाई है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ VG3 बाय फार, आई मीन सो फार हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द राइट पार्ट ऑफ द सर्किट where we can already see from the original circuit कि VGS3 and VGS4 were equal, ठीक है। ओरिजिनल सर्किट में दोनों Q3 और Q4 के गेट एंड सोर्सेज जो थे वो एक ही पोटेंशियल पे थे, देयरफॉर उनका स्मॉल सिग्नल VGS और VGS3 और VGS4 भी बराबर होंगे। सिंस बोथ द सोर्सेज वर ग्राउंडेड, देयरफॉर सोर्स वोल्टेज दोनों के एक्सप्रेशन में से निकाल दिया गया, VG3 और VG4 के फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, GM4 VGS4 बेसिकली इस करंट सोर्स का नाम होना चाहिए था GM4 VGS4, तो इंस्टेड ऑफ VGS4 इसको VG4 लिखा। एंड नाउ सिंस वी नो दैट VGS4 इज इक्विवेलेंट टू VG3, तो मैंने इसको GM4 VG3 लिख दिया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद दिस सर्किट। अच्छा, इस सर्किट में अब KCL अप्लाई करेंगे। लेट अस कॉल दिस नोड एज नोड A। इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करके देखते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो करंट इन दिस रेजिस्टर R02 एज वेल एज नो करंट इन R04। So the only 3 branches where there can be some current is this GM4 VG3 branch,
दिस Q2 ब्रांच एंड दिस I0 ब्रांच, और I0 के करंट का डायरेक्शन यहाँ पे है, दैट इज गोइंग आउट ऑफ द टर्मिनल। मैंने KCL अप्लाई किया। नाउ प्लीज ऑल्सो ऑब्जर्व कि GM4 VG3 is going out of the node. This current I0 is also going out of the node. Only current which is the current of Q2 is going toward this node. वो इस node के पास जा रहा है, ठीक है। Based on this we will be writing the KCL expression। I0 और GM4 ये दोनों अवे जा रहे थे, मैंने इन दोनों को एक ही साइन दिया, इक्वेशन के एक तरफ रखा। I0 ये भी बाहर जा रहा था, GM4 VG3 बाहर जा रहा था, एक ही साइन रखा, और GM2 VID/2 ये इसके टूवर्ड जा रहा था। अब ये GM2 VID/2 करंट कहाँ से आया है? प्लीज सी द इनिशियल एनालिसिस ऑफ द एक्टिव लोडेड मॉस पेयर। हम लोगों ने कहा था कि Q2 और Q1 का जो करंट था I वो सेम था। Q1 का करंट डाउनवर्ड जा रहा था और Q2 का वही करंट क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था, इसलिए हमने कह दिया था कि Q2 का करंट जो है वो अपवर्ड जा रहा है। इक्वेशन Q1 के और Q2 के करंट की सेम थी, GM/VID/2, तो यहाँ पे भी वही है, GM/VID/2 या GM2/VID/2, क्योंकि अभी आगे जाके प्रूव हो जाएगा कि GM1 और GM2 बराबर है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, वी हैव सिंपली रीअरेंज्ड, इस टर्म को इस साइड पे ले गए। नाउ वी नो द एक्सप्रेशन फॉर I0। इन द नेक्स्ट स्टेप VG3 की जो आपने प्रीवियसली भी इक्वेशन फाइंड की हुई है, ये वाली, ये VG3 इस इक्वेशन में पुट कर दिया गया है। ये आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन, रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई है। दिस इज द इक्वेशन फॉर I0। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि Q3 और जो Q4 थे इनका DC वोल्टेज और Q1 और Q2 का DC वोल्टेज सेम था। तो क्या हमें ये पता है कि GM3 या GM4 का फॉर्मूला क्या होगा? 2ID over VGS minus VT, यही होगा ना। और GM3 and GM4 are actually having the same current, क्योंकि Q3's current was actually replicated by Q4, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ड्रेन करंट Q3 का था वही Q4 का भी था, तो इसका मतलब है GM3 and GM4 both will be equivalent। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मेरे पास आई है GM4 and GM3, they both will cancel each other because they are actually equivalent। So ये एक्सप्रेशन थी आपकी, इसमें से GM4 GM3 कैंसल आउट हो गए। वी आर लेफ्ट विथ प्लस GM1 VID/2 प्लस GM2 VID/2। At the same time we should also know that GM1 and GM2 are also equivalent because they have the same DC voltage applied। दोनों के बेसिस के ऊपर जो DC वोल्टेज, दोनों के गेट्स पे जो DC वोल्टेज था Q1 Q2 ट्रांजिस्टर के, वो ग्राउंड था, सेम था, और करंट हाफ हाफ में इक्वली डिवाइड होता है। प्लीज ऑब्जर्व कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो यहाँ एक्टिव लोडेड स्टडी कर रहे हैं और जितने पीछे डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपने स्टडी किया मॉस बेस, सबको इसी असम्पशन से हमने सॉल्व किया है दैट द DC वोल्टेज at both the gates is same, so the DC current I is dividing equally between the two branches। That clearly indicates that GM1 and GM2 will also be same, क्योंकि 2ID over VGS minus VT इसका भी फॉर्मूला होगा और दोनों के ID सेम है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आपकी है GM1 GM2 वाली, GM1 GM2 सेम है, ये दोनों धारे आपस में ऐड हो जाएंगे, GM/VD आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। Please remember and recall that capital GM, that was the total transconductance of the circuit, was equivalent to VID over I0, ठीक है। I0 ओवर VID, ठीक है, ये I0 ओवर VID के बराबर था, तो इस लिहाज से आपके पास जो कैपिटल ट्रांसकंडक्टेंस आ गया है वो GM के बराबर आ गया। सो दिस इज एक्चुअली योर टोटल ट्रांसकंडक्टेंस। टोटल ट्रांसकंडक्टेंस पूरे सर्किट की कैलकुलेट करने से पता चला कि या तो वो GM1 या तो वो GM2 के बराबर है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन एंड में आ रही है। दिस इज द टोटल ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। Now we are left with only the calculation of the output resistance of this differential amplifier with active load, so that we will be multiplying it with this total transconductance equation or the value, and then we will be getting the differential gain of this circuit. Let us find the output resistance. Now we will be finding the output resistance for the given circuit, which is the active loaded MOS pair. If you try to see, I have redrawn the original circuit, ठीक है, and since we are now trying to find the resistance
एट द आउटपुट नोड आई हैव अप्लाइड अ टेस्ट वोल्टेज सोर्स एट द सेम टर्मिनल। मैंने आउटपुट नोड के ऊपर एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स Vx विद करंट Ix अप्लाई कर दी। Whenever we find the resistance of any network, we always ground the actual voltage sources। सारी वोल्टेज सोर्सेज को हटाना होता है, शॉर्ट सर्किट कर देना होता है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनपुट से प्लस VID माइनस VID/2 वाली सोर्सेज हटा दी गई हैं, शॉर्ट करके ग्राउंड कर दी गई। अच्छा, बुक में इस चीज़ का काफ़ी लेंदी प्रोसीजर बताया हुआ है, करंट्स वरंट्स अप्लाई किए हैं, इसको भी मॉडल बनाया है, इसका भी मॉडल बनाया है। एंड आई वुड अलाउ एनीवन के वो जाके ये सॉल्व करना चाहते हैं, दे कैन गो अहेड एंड डू इट। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि इफ़ आई ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पॉइंट, आई कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी वो एक R04 नज़र आ रही होगी और एक R02 नज़र आ रही होगी। सो बुक में भी बुक में उन्होंने क्या किया है कि इसके थ्रू करंट लिया, इसके थ्रू करंट लिया, इसके थ्रू जाने वाला करंट लिया, इसके थ्रू जाने वाला करंट लिया, और एंड में अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ से जो टर्म निकलेगी वो GM वाली निकलेगी। ठीक है, उसको दोबारा मैं एंड में बताया कि वो खाली GM की टर्म है, वो स्मॉल बन रही है, और फिर ये R04 जो है वो आंसर में आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, बट एट द एंड रिजल्ट इसके R04 और R02 आंसर में आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कीप द थिंग्स मोर सिंपल, मैंने सिंपली ये किया है कि इफ़ आई ट्राई टू ऑब्जर्व आफ्टर दिस फ्रॉम हेयर, तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि R04 और R02 के सेंटर टर्मिनल कॉमन है, एंड दोनों का दूसरा वाला टर्मिनल ग्राउंड है, इसका दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड है और इसका दूसरा टर्मिनल भी हमारे पास ग्राउंड है। दैट इज़ वाई we can say that R02 and R04 will simply be the output resistance of this circuit। ठीक है, ये टर्मिनल ग्राउंड कैसे है? ये टर्मिनल ग्राउंड इस तरह से है कि अभी बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि ये टर्मिनल जो है वो वर्चुअल ग्राउंड पे होगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने इस रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो इन टर्मिनल्स को ग्राउंड किया है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी जब इस पॉइंट से देखा जाएगा तो R02 के इस टर्मिनल के ऊपर वर्चुअल ग्राउंड ही अपीयर हो रहा होगा, यानी ज़ीरो ही अपीयर हो रहा होगा। तो विद दिस फैक्ट हम बहुत आसानी से क्लियरली बता सकते हैं कि इस वक्त तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये टर्मिनल ग्राउंड किया गया है, लेकिन इन रियलिटी जब ये सर्किट फुली फंक्शनल होगा, यहाँ पे प्लस VID/2 या माइनस VID/2 दिया हुआ होगा, और आप इस टर्मिनल से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो R02 का ये टर्मिनल जो है वो अपोजिट सिग्नल्स अप्लाई करने की वजह से वर्चुअल ग्राउंड पे होगा, विच इज़ मच सिमिलर और एग्जैक्टली सिमिलर टू द केस विथ R04 के जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। विद दिस थिंग इन माइंड वी कैन ईजिली से कि इस टर्मिनल के ऊपर R04 और R02 एक दूसरे के पैरेलल में हमें नज़र आ रही होंगी। दैट आई हैव रिटन डायरेक्टली ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, AD जो कि डिफरेंशियल गेन था सर्किट का, इसके लिए हम लोगों ने जनरलाइज फार्मूला लिखा था कि वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज जनरली होता है। इसको किस फार्मूला से आप फाइंड कर रहे थे? टोटल ट्रांसकंडक्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस के फार्मूला से आप फाइंड कर रहे थे। टोटल ट्रांसकंडक्टेंस वी हैव ऑलरेडी फाउंड टू बी GM। आर आउट आपके पास आ गया R02 पैरेलल R04। नाउ इन द स्पेशल सिनेरियो प्लीज ऑब्जर्व कि R02 और R04 सेम नहीं होंगे। R02 क्या होगा? R02 बराबर होगा VA ओवर ID2, इसका ड्रेन करंट, और R04 क्या होगा? VA ओवर ID4। ID2 ID4 तो सेम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना ड्रेन करंट DC करंट इसमें होगा उतना DC करंट इसमें भी होगा। ID2 ID4 तो सेम होंगे। मैं इनकी कैलकुलेशन का तरीका बता रही हूँ। R02 होगा VA ओवर ID2, R04 होगा VA ओवर ID4। हो सकता है दोनों का ID2 और ID4 बराबर हो, लेकिन R02 जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम NMOS, R04 इट इज कमिंग फ्रॉम PMOS। ठीक है, तो हो सकता है कि VA NMOS का और VA PMOS का सेम ना हो सकता है वो डिफरेंट हो। तो उस केस में R02 और R04 डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ID2 ID4 जो है वो सेम थे, लेकिन इसका NMOS का VA और PMOS का VA डिफरेंट होने से R02 R04 डिफरेंट हो सकते हैं, नीड नॉट टू बी सेम ऑलवेज। सिर्फ एक
ये आपका एक्चुअल आंसर है. दिस इज योर एडी एक्सप्रेशन, जी एम आर नॉट टू पैरेलल आर नॉट फोर. ये आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन है. कह रहे हैं अगर हाँ आर नॉट टू और आर नॉट फोर बराबर हो जाए कभी कि दोनों मॉसफेट्स का एन मॉस पी मॉस का वी ए भी बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि आर नॉट टू आर नॉट फोर दोनों सेम हो जाएंगे आर नॉट के, और फिर ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके जी एम आर नॉट बाय टू बन जाएगी. ये स्पेशल केस है जब दोनों बराबर हो. आपके पास एक्चुअल फाइनल एक्सप्रेशन जो आई है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. नाउ वी आर गोइंग टू solve a numerical related to the topic that we have just covered. Please try to see what details are already given. It's given that the W by L for the NMOS transistors is 100. The W by L for all the PMOS transistors of the circuit is 200. Mu n COX value has been given, and mu p COX value is also given to be 0.2 milliampere per volt square. अच्छा, प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व कि VA फॉर द NMOS and VA for the PMOS, they both are same and have the same value as 20 volts. The current I is 0.8 milliampere. RSS resistance, which will be the resistance of the current source, is 25 kilo ohm. You are asked to calculate GM, R out and the differential gain AD. Okay, so these are the three parameters that are being asked in this numerical. Please try to see that capital GM we have recently calculated total transconduct, it is representing total transconductance, and it was actually equivalent to either GM1 or GM2, and we gave it the common name GM. The formula for GM we already know is 2ID over VGS minus VT. ID क्या है? ID is the current of either Q1 और Q2. किसी एक का करंट रख के निकाल लें तो आपको पता है कि Q1 और Q2 दोनों के अंदर हाफ हाफ करंट डिवाइड हो रहा है, डीसी करंट. तो ID की जगह मैंने I/2 रखा है, VGS माइनस VT. प्लीज़ नोट दैट द वैल्यू ऑफ I इज़ गिवन ओवर हेयर 0.8 मिली एम्पेयर, ये तो गिवन है, लेकिन VGS माइनस VT की वैल्यू इसमें क्या है वो गिवन नहीं है. For this purpose what we will be doing, we already know that Q1 and Q2 will be in saturation region. तो मैंने ID1 या ID2 की करंट इक्वेशन लिख ली, हाफ KN W by L VGS minus VT होल स्क्वायर. प्लीज़ ऑब्जर्व कि ID1 या ID2 दोनों में से किसी एक को भी ले लें तो वो I/2 के बराबर है. उसको मैंने पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम. अच्छा, I की वैल्यू क्या गिवन थी? I की वैल्यू 0.8 मिली एम्पेयर गिवन है, वो मैंने 0.8 मिली एम्पेयर यहाँ लिख दिया. W बाय L फॉर द NMOS इज गिवन टू बी 100, ये वैल्यू यहाँ आ गई. Kn बेसिकली किसके बराबर होता है? Kn बेसिकली म्यू n इंटू COX के बराबर होता है. म्यू n COX की वैल्यू इज इक्वल टू के बाद जो लिखी है वो 0.2 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर लिखी है, तो ये 0.2 एक्सपोनेंट -3 मैंने यहाँ पुट किया है. प्लीज़ रिमेंबर कि जो मिली का या जो माइक्रो का फैक्टर होता है उसको एक्सपोनेंट करके आपने अपनी कैलकुलेशंस में पुट करना है. ठीक है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द फैक्टर VGS माइनस VT. ये VGS माइनस VT की वैल्यू आ गई. VGS माइनस VT आपके पास 0.2 आ गया वोल्ट्स में. Now we will be using this value VGS minus VT to put in the equation of GM. Okay, so now this was the formula for GM. 2 put कर दिया, I/2 करंट I 0.8 मिली एम्पेयर गिवन था. I/2 की वैल्यू क्या होगी? 0.4 हो जाएगी. ये 0.4 मिली एम्पेयर मैंने पुट किया. VGS माइनस VT वी हैव कैलकुलेटेड विच इज़ 0.2. तो GM, कैपिटल GM आपके पास आ गया बेसिकली 4 मिली एम्पेयर पर वोल्ट. ठीक है. अच्छा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली R out. फॉर कैलकुलेशन ऑफ R out वी नीड द वैल्यू ऑफ R02 एंड R04. सो R02 बेसिकली प्लीज रिमेंबर कि Q2 ट्रांजिस्टर जो था दैट वाज एन NMOS. जब भी मैंने NMOS का VA लिया है और ID2 यहाँ पे लिया है. ठीक है, ID2 बेसिकली कितना था? I/2 था, अभी आप प्रीवियसली देख चुके हैं. तो मैंने I/2 0.4 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिया हुआ है. NMOS का VA लिया है. अच्छा, आई विल बी गिविंग अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसके अंदर जो है वो VA NMOS का और VA PMOS का डिफरेंट होगा. इस न्यूमेरिकल के अंदर NMOS और PMOS का VA सेम दिया, तो डेफिनेटली जो है आपके पास VA से डिवाइड किया, VA डिवाइड बाय ID2 किया. NMOS का जो R02 आया वो 50 किलो ओम आ गया.
वी ए पी भी एन मॉस जैसे ही है, तो ये भी 20 वोल्ट था, और यहाँ आई डी 4। प्लीज़ नोट के तमाम जो ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 सब का डीसी ड्रेन करंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो जो आई डी 2 था आई डी 4 भी वही था, आई बाई 2, इसकी वैल्यू 0.4 मिली एम्पेयर आ गई और इसका आंसर भी 50 किलो ओम आ गया। Please remember कि R out that was representing the total output resistance of the circuit was the parallel combination of R02 and R04, दोनों को parallel में put किया, सेम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में पुट कर देने से हाफ आंसर आ जाता है। तो 25 किलो ओम इज़ योर आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, यही आर आउट बेसिकली यहाँ पुट की गई है, क्योंकि डिफरेंशियल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ जी एम इंटू आर आउट। जी एम आपने यहाँ से फाइंड किया, आर आउट आपने ये रखा, ए डी गेन आपके पास आ गया बेसिकली 100 वोल्ट पर वोल्ट। दिस इज बेसिकली योर टोटल डिफरेंशियल गेन। So here is the numerical related to the active loaded, which is now complete. Now we will be doing some further numericals. Okay, I am stopping this lecture over here, and in the next lecture we will be doing different numericals from different topics of EDC, after which our course will be completed.